Welcome to one of the many circle sessions hosted by Wonder Girls. Wonder Girls is a nationwide classrooms movement. We bring relatable female role models into classroom settings through our circle sessions. As you will see, the crux of these sessions is its dialogic nature. We're currently working with 150 plus classrooms across 7 Indian cities. Our aim is for every adolescent in India to have access to relatable female role models. I welcome you once again and hope you enjoy learning from our speakers' life journey and career path. She pursued a decade-long competitive career in India and has represented Maharashtra and Air India at the national level for 10 consecutive years. Her competitive athletic career and educational exposure in sports psychology have enabled her to enjoy the best of both the worlds. She is a passionate sport enthusiast, a passionate reader, and a huge movie buff. It is so exciting to know so much about you already, and we are really looking forward to a very enlightening, and amazing session. Over to you, Sanika. Thank you so much, Devika, and thank you so much for welcoming me so nicely this morning. I am very excited because I love interacting with kids and especially girls because I was a girl like you all. मैं भी तुम्हारे जैसी थी not too long ago. So I'm really looking forward. And if you guys have any questions, आपको कोई भी सवाल है, please सीधा directly unmute कीजिए अपने आप को and just shoot your questions. I do not mind answering any of them. And I hope you all enjoy listening to me with this bad voice. So sorry for that. That is completely. Please stop apologizing for that. We completely understand that health first, and you can take your time whenever you're not feeling well. Have some water and resume. I won't be. I would like to be modest with this. That my girls are very patient and very disciplined. They will be supporting you throughout. Please feel free to go through the chat box as well because my girls love to interact and just so that we are in time and we do not splurge our time. हम time के आगे ना चले जाए and we complete this in an hour. I've asked them to be interactive and very active in the chat box. So they will pour all the warmth and love possible for you there itself. Yeah. Okay. Thank you so much, girls, for patiently waiting. Thank you so much for all the bajis for joining. Sanika, just a heads up. Here, we don't call ourselves teachers, ma'am, or didis. We call ourselves bajis. And our teachers also call us baji. So if somebody says, hi, Sanika Baji, just know that they're calling you Didi. And they are just pouring and showering their love. Thank you so much for calling me that. Yes. Everybody we love, we call Baji. And that is for you. So Sanika Baji is how I'm going to introduce, is how I'm going to start with you. And Sanika Baji, thank you so much for joining. Thank you so much for sparing your time for us. To begin with, I would love for you to introduce yourself, your profession in detail, and how did you get into a very innovative profession like this? Right. So I think जब मैं भी अपने 6th स्टैंडर्ड में थी, 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी, तो मेरे पेरेंट्स मेरे से तंग आ चुके थे कि तुम बहुत उछल कूद मत मचाती हो घर पे एंड यू शुड यूज दैट एनर्जी समवेयर एंड हमें घर पे तंग मत किया करो, हम काम करके आते हैं, हम थक जाते हैं, हम तुम्हारी एनर्जी से मैचअप नहीं कर पाते, तो प्लीज डू समथिंग. सो मेरे स्कूल में समर कैंप के टाइम पे उन्होंने मुझे टेबल टेनिस के लिए एनरोल किया एंड आई डिड दैट एंटायर कैंप फॉर अबाउट अ मंथ एंड मुझे वो स्पोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया, मुझे पढ़ाई से भी ज़्यादा वो स्पोर्ट अच्छा लग गया एंड मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मुझे ये सीरियसली परसू करना चाहिए, मुझे इसमें ये खेलने में बहुत ज़्यादा पसंद आता है. एंड मेरा क्लास होने के बाद भी जब मैं घर पे आती थी, मैं बस वो रैकेट और बॉल के साथ टैप करो, नीचे उछलो, बॉल घर में आवाज़ करो, मैं सिर्फ वही करती थी. तो मेरे पेरेंट्स का भी मानना था कि ठीक है, चलो इसको खेलने देते हैं एंड देखते हैं क्या होता है. And that's how I continued playing that sport. और मैं बहुत छोटी थी, I think I was again like a 6th or 7th grader जब भी I became the first state champion and तभी मुझे अच्छा ऐसा लगा कि अरे वाह, इसमें मैं जीत भी सकती हूँ.
तो ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ खेलना पसंद है, बट मुझे इसमें जीतना भी आ सकता है। एंड दैट इज व्हेन माय जर्नी टुवर्ड्स प्लेइंग कॉम्पिटिटिव टेबल टेनिस बिगैन। और फिर मेरी पूरी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमने लग गई। मैं सिर्फ टेबल टेनिस खेलती थी। मैं दिन में अबाउट 7 आवर्स प्रैक्टिस करने लग गई। तो मैं स्कूल का टाइमिंग जो यूजुअली 7 o'clock टू 12 o'clock होता है, मैंने उसको भी कम कर लिया। मैंने स्कूल के प्रिंसिपल से जाके बात करी मेरे पेरेंट्स ने, एंड दे गेव मी स्पेशल परमिशन। ठीक है, तुम चलो स्कूल आधा ही अटेंड करो, तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हें जो चाहिए तुम करते रहो तुम्हारे स्पोर्ट के लिए। तो मेरे स्कूल ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, एंड आई थिंक आई एम हियर बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दोज पीपल हु हैव सपोर्टेड मी इन माय जर्नी। And so that's how I started playing, and then the more I started playing, the more I started winning. But मेरे दिमाग में हमेशा ये एक सवाल आता था कि जब मैं, ऐसा क्यों होता है कि मैं कभी कभी जीतती हूँ और कभी कभी हारती हूँ, और ऐसा क्यों होता है कि मुझे हारने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है और हारने के बाद बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो दैट इज़ व्हेन आई थिंक द साइकोलॉजी का कीड़ा स्टार्टेड कमिंग इन माई माइंड। एंड मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि हम क्यों एक पर्टिकुलर बिहेवियर की तरफ झुकते हैं, हम फ्रेंडशिप कैसे मेंटेन करते हैं, हम हमारे पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्यूरियस लगने लग गई। एंड फिर जब मैं अपने 10th स्टैंडर्ड में थी, तो मैंने पढ़ाई करके मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए। आई डोंट नो हाउ, एंड दैट इज स्टिल अ मिस्ट्री, इट स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री, because I was playing till January 15th, and my board exams were, I think, in the first week of February or something. So in a week or something I started studying, and my mother was in like, oh my god, तुम बस पास हो जाओ, बस फेल ना हो जाओ। So that's how I started, मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया और मैं ज़्यादा पढ़ाई के टूवर्ड्स झुकने लग गई 10th स्टैंडर्ड के बाद। और मुझे ऐसे लगा कि जितना मुझे खेलना था उतना मैंने खेल लिया है। मेरे पास नेशनल लेवल पे मेडल्स है, मेरे पास स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप तक है। तो अभी कुछ और किया जाए। और मेरे में वो बहुत एक ये है कि मुझे हमेशा कुछ नया करना होता है। इसीलिए व्हेन दिस इवन अपॉर्चुनिटी, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू देविका आल्सो, आई वाज रियली एक्साइटेड बिकॉज दिस कीप्स मी गोइंग टू टॉक टू न्यू पीपल, टू इंटरैक्ट विद देम। मुझे बहुत पसंद है ये करना। एंड फिर मेरी साइकोलॉजी के टुवर्ड्स जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने मुंबई से साइकोलॉजी में पढ़ाई करी, एंड तब मुझे जाके ये रियलाइज होने लग गया कि हम जैसा सोचते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो ख्याल होते हैं, वो हमारी लाइफ एक्चुअली कंट्रोल करते हैं। एंड अगर हम उनके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है। जैसे कि अगर हम अगर खेल रहे हैं, अगर हम गिर गए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपको चोट आ गई, आपको यहाँ से खून आ रहा है, तो आप फर्स्ट एड करोगे, आप हल्दी लगाओगे, आप बर्फ लगाओगे, राइट? तो फिर अगर हमें ठीक नहीं लग रहा है, अगर हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, या हमें क्योंकि ये पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा घर पे बोर हो रहा है, बहुत ऐसा हो रहा है नहीं अभी कुछ करने का मन ही नहीं है, तो हम क्यों किसी को अप्रोच नहीं करते हैं। एंड दैट वाज माय एम इन माय हेड, दैट हमारे कंट्री में टू इंश्योर दैट बेसिक से बेसिक लेवल, मतलब आप जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करके मुझे ये जो टॉपिक है वो बहुत नॉर्मलाइज करना है कि अगर आपको एक आध दिन हो सकता है जब हमें नहीं ठीक लगता है, और मुझे भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने साइकोलॉजी का पढ़ाई किया है तो मेरा हर दिन अच्छा ही जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा नहीं होता होगा। अगर आपके साथ होता होगा तो प्लीज मुझे बताओ आप क्या करते हो। बट ऐसे मेरी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के टुवर्ड्स जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर इंडिया में वो कोर्स अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए मैं 2 साल लंदन में थी। मैंने वहाँ जाके पढ़ाई करी और मुझे वहाँ जाके रियलाइज हुआ कि वहाँ सब कितना इजीली अवेलेबल है और हमारे कंट्री में वो नहीं है इतना ज़्यादा अवेलेबल। एंड दैट इज़ व्हाई आई डिसाइडेड कि आई विल कम बैक टू माय कंट्री and I'll try and talk about these topics. And since my subject is so different, sports psychology, इंडिया में वो सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं अपॉर्चुनिटी और चैलेंज की तरह लूँ कि I will go and talk to people and I will ensure that girls like you, young girls like you, who have an entire life ahead of them to and so many opportunities to explore. And that is why I do what I do. And since I've been an athlete myself, मुझे समझ में आता है जब मेरे सामने वाला एथलीट बोलता है कि मुझे मैच खेलने से पहले डर लगता है,
या मुझे मेरे पेरेंट्स से प्रेशर फील होता है, या मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि डोंट वरी, मैं भी उधर ही थी, नॉट टू फार लॉन्ग अगो आई वाज आल्सो इन योर सीट. And I feel like it is such a beautiful thing to do, to especially help somebody gain control over their thoughts or just try and make them aware. जैसे कि अगर मैंने आप सबको पूछा कि आप फिलहाल क्या सोच रहे हो, देयर विल बी 10-12 थिंग्स जो तुम हमारे दिमाग में चल रही है. इट्स नॉट जस्ट वन थॉट, कितने सारे थॉट्स आ सकते हैं. आप बोल सकते हो पता नहीं ये कौन सुबह सुबह आके हमें लेक्चर कर रहा है, पता नहीं ये कौन है. आप क्वेश्चंस के बारे में सोच रहे होंगे, आप आपके स्कूल के बारे में सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे अच्छा चलो आज सैटरडे है तो कुछ अच्छा करते हैं. कितनी सारी चीजें जो हमारे इस 6 इंचेस में होती है और उसका हमारे लाइफ पे इतना ज्यादा कंट्रोल होता है, वो मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है. एंड आई थिंक दैट इज व्हाई आई डू व्हाट आई डू. एंड इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस सब्जेक्ट में पीएचडी करी जाए, सो दैट और मेरा बचपन से ये सपना रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना था. जस्ट लाइक यू ऑल विल नो कि हम जब छोटे होते हैं तो हमें अगर कोई पूछे कि आपको क्या बनना है, हम इनोसेंटली बोलते थे कि मुझे डॉक्टर बनना है. And I was also like how you girls are. I can see a lot of girls smiling here. So I hope that you can relate जो मैं बोल रही हूँ कि मुझे भाई डॉक्टर बनना था. And like that has just been my story a little. Yeah. Thank you so much. That is, we really went through your journey, and I was picturizing everything. And I'm sure ये सबके साथ हो रहा होगा कि हमें दिख रहा था how Sanika was and how Sanika is now. Thank you. That's a beautiful story. Just to pump you up a little, the girls have responses like, "I'm feeling better and very interested because we are listening to story of Sanika Didi. I am feeling very good. The thoughts are very good. This is such a motivating story," are the responses we're getting from the girls. Thank you for this motivation. Moving ahead and connecting to what you just said, you said you did PhD, right? And can you just throw some light on what PhD actually is, and how, if the girls really want to pursue PhD in some field, which need not be this sports psychology itself, how can they do that? And how do you pursue PhD just because of an interest in the topic? Can you just talk around that? Yeah. Right. So जैसे मैं बोल रही थी, अगर मैंने आप सबको पूछा कि यहाँ हम जो है जितने भी लोग हैं, I think we are about 45 people here, यहाँ से कितने लोगों को यहाँ से डॉक्टर बनना है, मुझे ऑनेस्टली खुद को अनम्यूट करके जवाब दीजिए. Me. Okay. Me. Okay. Very good. Me. So a lot of people want to become doctors here. राइट. तो जब हम बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, हमारे दिमाग में क्या आता है? हॉस्पिटल आता है, पेशेंट्स आते हैं, क्लिनिक्स आता है, राइट. हमारे दिमाग में कभी कभी सर्जरी आ सकती है, कभी कभी फिजियोथेरेपी आ सकती है, बहुत से ऑप्शंस आते हैं. वो डॉक्टर अगर हमें बनना है तो हमें मेडिसिन की डिग्री जरूरी होती है, जिसको हम MBBS नाम बोलते हैं. दैट इज हाउ जब हम बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है तो वो हमारे जहन में होता है. PhD is also a doctorate only. It is just that you specialize in the subject that you want. For example, अभी यहाँ पे कोई है जिनको हिस्ट्री बहुत पसंद है, या जिन्हें साइंस बहुत पसंद है, जिन्हें से बायोलॉजी पसंद आ सकती है, जिन्हें से हिंदी पसंद आ सकता है, उर्दू पसंद आ सकता है. आपको जो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद आता है उसमें आगे 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 जाके पढ़ाई करना, और वो सब्जेक्ट का सबसे बड़ा डिग्री होता है PhD. तो आप आपके पसंद का सब्जेक्ट चूज करके उसमें पहले अंडर ग्रेजुएशन करके, फिर मास्टर्स करके, फिर थोड़ा काम करके, फिर आप रिसर्च की तरफ बढ़ सकते हो. एंड दैट इज व्हाट अ PhD मीन्स एज अपोज टू व्हाट एन MBBS डॉक्टर इज. सो इट्स नॉट नेसेसरली कि अगर आप डॉक्टर बनोगे तो आप सिर्फ हॉस्पिटल में ही काम करोगे या आप सिर्फ पेशेंट्स के साथ ही काम करोगे. ऐसा नहीं होता है. आप कोई भी सब्जेक्ट में PhD कर सकते हो एंड आप उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन सकते हो. सो for example, now I can see a lot of people writing in the chat that I like history because we know about history. Very true. हमें हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता है. हमें जैसे जैसे आप स्कूल में आगे जाओगे आपको अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पता चलेगा. एंड अगर वो टॉपिक आपको इंटरेस्ट करता है तो आप डेफिनेटली उसमें भी PhD कर सकते हो. मैथ्स डेफिनेटली
आपको जो भी आपका सब्जेक्ट एरिया है, आपको अगर लैंग्वेजेस पसंद आते हैं, आपको अगर डांस पसंद आता है, आपको अगर म्यूजिक का शौक है, तो आप वो वाले सब्जेक्ट्स में भी आप पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। एंड आपके नाम के आगे वो डॉक्टर जो सबको चाहिए होता है वो लग सकता है। Yeah. So we're getting social studies, math and Yeah, science, English. Amazing. Great. I'm glad that they've got the knowledge of how they can pursue something of their interest. That is more important, because it is important to know and talk to yourself and ask of मुझे क्या इंटरेस्ट करता है, मैं वही आगे pursue करूंगी. Thank you, Sanika, for actually enlightening our girls with this, and I would be the happiest if they could think of this at this age itself. Connecting to that, you said, you already mentioned in your story of why sports and psychology did you connect. If I'm not wrong, you said because जब मैं खेलती हूँ, why am I happy when I win and why am I sad when I lose, is the psychology I wanted to study. So that was a common question my girls had, saying why sports and psychology did you connect. So would you like to throw some more light on that, or was Definitely. it what you said? Yeah. Definitely. So I'll tell you a very, very funny incident which happened to me. Okay, so when I was about 14 or 15 years old, मैं एक बहुत important tournament के लिए prepare कर रही थी, and I was like playing 7-8 hours every day. I was doing physical fitness in the morning. मैं शाम को योगा करती थी, तो मेरे life का वो पूरा motive वो tournament जीतना हो गया था. And I played well, but I lost in the finals. And वो finals आने के बाद मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ, मैं स्टेडियम में बैठ के रोने लग गई थी. एंड आई वाज लाइक पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने इतनी मेहनत करी थी, बट मैं हाउ कैन आई नॉट विन. इतना प्रैक्टिस करने के बाद, इतनी सारी चीजें सही करने के बाद भी मैं जीत नहीं रही हूँ, मतलब शायद मुझे खेलना ही नहीं आता है. एंड दैट इज व्हेन मेरे कोच ने मुझे रेकमेंड किया कि स्पोर्ट में सिर्फ फिजिकल मेहनत नहीं होती है, कहीं तो मेंटल मेहनत की भी जरूरत होती है. एंड वो शायद हमने नहीं किया था, इसीलिए शायद आपका ये मैच गया होगा. एंड आई वाज लाइक ओके, फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं. दैट इज द टाइम जब मेरी मुलाकात हुई एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से इंडिया में बहुत सालों पहले. और उन्होंने जब मुझे समझाया कि जब हम क्रूशल मोमेंट पे आते हैं, तो इट इज नॉट तुम कितने बॉल टेबल पे डाल सकते हो, बट तुम यहाँ से कितने शांत हो सकते हो, या तुम यहाँ से कितना तेज सोच सकते हो, तुम कितने अच्छे डिसीजंस बना सकते हो. एंड आई फेल्ट दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट. एंड यूजुअली मुझे वो मेरे स्पोर्ट की तरफ लेके जाना चाहिए था, बट इट टुक मी ऑन अ वेरी वेरी डिफरेंट टर्न. And I remember coming back home and I told my mom that, if I don't become a successful table tennis player and if I don't play for my country, I think I will just become a sports psychologist. And that is the job that I want to do. I just want to help athletes who feel that pressure, or who feel that emotion when they play. And I think I really want to work with athletes only, because जब से मैं छोटी थी मुझे और कोई चीज़ पता ही नहीं थी, मुझे सिर्फ स्पोर्ट ही पता था. लाइक आप जैसे खेलते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे पास वो टाइम ही नहीं था, तो मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ स्पोर्ट ही थी. तो what better than pursuing a job which is again in and around a field which And I think that is when I started thinking कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ. मुझे अगर प्रेशर आता है तो मुझे प्रेशर किस बात का आता है, क्यों आता है, और वो प्रेशर आने से मेरे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं. फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया कि मेरे हाथों में पसीना आता है, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, मैं सोच नहीं सकती हूँ. और फिर मुझे पता चला कि योर माइंड, योर ब्रेन कैन हैव सो मच ऑफ इफेक्ट ऑन योर बॉडी, एंड वो रिलेटेड है. हम उन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं. योर माइंड एंड योर बॉडी वो हैंड इन हैंड व्हेन यू प्ले. और फिर I think that is how I was interested in the whole subject of sports psychology. And why is it that we do certain things जो हम करते हैं. For example, if I ask you people, why do you go to school? उसके पीछे एक कोई रीजन होगा, उसके पीछे एक कोई मोटिवेशन होगा. अगर मैंने पूछा कि आप यहाँ पे ये सेशन क्यों अटेंड कर रहे हैं, उसके पीछे भी कोई एक थॉट होगा, या फिर आप उसके पीछे कोई एक मोटिवेशन हो सकता है. So there is always something in our mind which drives us to do something, and that is why we behave a certain way.
right? And that really intrigued me a lot. And I think that quest and that curiosity has kept my PhD hope alive. And I hope it pulls me through my PhD as well. Exactly, to gain knowledge. So ये आपको सवाल पूछना या मैं जो आंसर करूंगी उसमें से कुछ ऑब्जॉर्व करना, ये आपका मोटिवेशन है, राइट? ये सेशन अटेंड करने के लिए. एंड दैट इज व्हाई सैटरडे मॉर्निंग आप उठ के तैयार होके ये सेशन अटेंड कर रहे हो, राइट? Exactly. Beautifully put. And I would love for my girls to make connection to what you said. Why do we do this? Yeah, and I think that some of them are curiosity? already doing that, you know, like I Yes. go to school because I want to gain knowledge and want my dreams to come true. Exactly. हम कुछ करते हैं, वो ड्रीम जो हम हमारे दिमाग में आता है कि अगर मैं स्पोर्ट खेलती तो मुझे मेरी कंट्री के लिए खेलना है, अगर मुझे करियर परस्यू करना है तो मुझे डॉक्टर बनना है. ये जो हमारे जहन में ड्रीम्स होते हैं, दैट कीप अस, यू नो, वो हमें हेल्प करते हैं एवरी डे टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड डू द सेम थिंग. स्कूल जाओ, घर पे आओ, थोड़ा घर का काम करो, फिर थोड़ा फ्रेंड्स के साथ खेलो. इट कीप्स अस गोइंग, right? Which means that there is something in between our 2 ears, that pink organ, which helps us do what we do. And I feel like that is something that, you know, we should really work on. अगर हम, जैसे मैं बहुत बच्चों को बोलती हूँ कि अगर आप साइकिलिंग करते करते अगर गिर जाओगे तो आप उठोगे, राइट? आप सिर्फ रोड पे लेटे तो नहीं रहोगे. तो अगर हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार आज का दिन ना अच्छा नहीं जा रहा है, you know, pull yourself up, try and say some things to yourself, जो कि, you know, you'll get yourself up from that situation and, you know, approach the day as it comes. Totally true. I just typed for my girls in the chat, and I would like to ask them, can you make connections to the C's we learn in class? So in TF5, we teach them the 8 C's that are very important in life: curiosity, communication, collaboration. And curiosity is one that I am very proud to say that my girls really have. कि बाजी हम ये क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? And which is why they were like, yesterday when I said sports psychologists, they really wanted to know what it is all about, and they were so excited. So I'm sure they have gained a lot of knowledge right now with this. And thank you for beautifully putting on how, if we really want to pursue something, get that curiosity in you and really reach there. Don't just stop with chalega hoga kuch. Let's not stop and let's keep going. And that is what curiosity will help us with, to keep going with that thought. Beautifully explained, Sanika. Thank you so much. I think PhD is something that is very clear to my students of what it is and how you can pursue that. Connecting to that, again, something very common that my students were really intrigued to know. And that question did bring a smile on my face. And I really felt how they are really thinking for this session, saying, are you in a profession today that you thought about when you were a 6th grader? Or is it different, and how? Right? Right. So I will be very, very honest. I'll be very, very honest with you all. I don't know if this is fortune or what, but this is exactly what I wanted to do. And जब से मैंने बोला कि, you know, when I visited a sports psychologist, मेरे दिमाग में वो छोटा सा कीड़ा बैठ गया था. And that छोटा सा कीड़ा has helped me come like 6-7 years from there now. And I think, yes, I definitely knew that I wanted to do this, and I set myself on a path no matter how difficult it was. And I think, having said that, मैं ये भी कहूँगी कि कभी कभी जो हम सोचते हैं जब हम बहुत छोटे होते हैं, हम बोल देते कि हमें ये करना है, बट शायद वो वैसा नहीं टर्न आउट होता है. एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. इट्स नॉट दैट यू हैव टू नो एवरीथिंग एंड यू हैव टू प्लान योर लाइफ टू द टी कि नहीं ये मैं ऐसा करूँगी, उसके बाद मैं ये करूँगी, उसके बाद मैं ये करूँगी. कभी कभी वो प्लानिंग नहीं सक्सेसफुल हो सकता है. एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी प्लान समथिंग, और या फिर हम जब सोचते हैं कि यू नो ये मुझे क्यों करना है, या मुझे मेरा ये ड्रीम है, मुझे अचीव करना है, उसमें एक छोटा सा विंडो होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे में वो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए टू थ्रो दिस प्लान आउट ऑफ द विंडो एंड स्टार्ट प्लानिंग समथिंग एल्स.
एंड आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्रूशल एट योर एज, बिकॉज हम इतना टीवी पे देखते हैं, हम मोबाइल पे देखते रहते हैं कि अच्छा ये उन्होंने ये अचीव किया, उन्होंने वो अचीव किया, और हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं कि मुझे भी वैसा ही कुछ करना है. डेफिनेटली मोटिवेट होना ही चाहिए, बट आप आपके लिए सोचो. और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यू नो वो शायद अचीव ना हो पाए, या वो करने के लिए तभी से टाइम सही ना हो. that does not mean that you should stop there. There will always be things in life जो आप उसके भी आगे जाके कर सकते हो. And it's okay अगर कोई गर्ल्स को नहीं पता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है. It's fine. You are just in your 6th grade. You have a very very long time ahead of you to decide कि मुझे क्या करना है. So yes, there will be always people who will know that okay, this is what I want to do, and there will be girls like you who will think कि अच्छा फिलहाल पता नहीं है क्या करना है, बट कुछ करना है, ये मेरे जहन में पक्का है. Great, amazing. Never stop. There might be difficult times, but keep going. A beautiful lesson, beautiful takeaway that we have from this session. I hope girls, you're really feeling motivated on how you really have a long way to go, and it's this opportunity is for you to think and really decide. Not decide ke yahi karna hai, but keep thinking and keep being in the process. We have a question saying, why doctor, which I think you did throw some light on, but can you throw more light, or डेफिनेटली. why this? सो जैसे कि मैंने कहा, जब मैं बहुत छोटी थी तभी से मेरा सपना रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और तभी मुझे ना ये पीएचडी वगैरह के बारे में नहीं पता था. तो मेरे भी दिमाग में यही था कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है मतलब मुझे हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा. बट जैसे जैसे मैं उसके बारे में पढ़ते गई, वैसे वैसे मेरा नॉलेज एक्सपांड होते गया कि इट इज़ नॉट ओनली कि यू हैव टू वर्क इन अ हॉस्पिटल और यू हैव टू वर्क विद पेशेंट्स. एंड देन जब से मैंने ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी चूज करा, मुझे ऐसे लगा कि हमारे कंट्री में उतने क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स नहीं है, राइट. और आप अगर एथलीट्स के साथ साइकोलॉजिकली काम कर रहे हो, तो आप किसी की जिंदगी के साथ काम कर रहे हो. आपके साथ वो इंसान बहुत कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करता है, एंड यू शुड बी केपेबल वन एंड क्वालिफाइड इनफ to manage that, to understand that, and then to ensure that you are doing good as opposed to doing harm to that person. And I think that was one motivation behind why I wanted to do a doctorate in sports psychology. And also because मैंने ये खुद से बहुत पहले ही डिसाइड किया था कि यू नो टेबल टेनिस में I couldn't represent my country internationally, but that doesn't mean that my life's purpose is defeated, right? I still have the other part of me which really fortunately likes studying a lot and reading books a lot. Why not make use of that capacity to do something, right? Especially when you play sport, na, you fall in love with the idea that I want to do something for my country, right? And I think just working with athletes, वो सराउंडिंग हमेशा वही हो जाता है कि you have to perform, you have to do something for your country, you have to win medals. And I think पता नहीं क्यों बट स्पोर्ट तुम्हें उस दिशा में लेके ही जाता है, वे इट कीप्स यू गोइंग, इट कीप्स यू मोटिवेटेड. बट मैं ये टाइम ये भी बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हमेशा 100% ऑफ द टाइम्स मैं आई एम स्माइलिंग ओनली. इट्स नॉट लाइक दैट. आई ऑल्सो हैव डेज वेयर आई फील लाइक टू नॉट डूइंग एनीथिंग, और मुझे बस वो दिन में कुछ भी करना नहीं होता है. एंड आई वॉन्ट टू से दैट इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल टू फील कि अरे यार आज कुछ भी नहीं करना है, आज आई जस्ट वांट टू स्लीप टुडे, मुझे बस टीवी देखना है दिन में. सो डोंट थिंक कि जस्ट बिकॉज मैंने साइकोलॉजी करी है मतलब कि बस सभी सानिका मैम को बैड इमोशंस आते ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल होता नहीं है. देयर आर डेज when I cry, there are days when I don't feel good about myself, and that's okay. That's just मैं रिलेट करती हूँ कि जब मैं टीटी खेलती थी हर पॉइंट तो मुझे नहीं मिलता था ना, कोई पॉइंट्स तो मेरे ओपोनेंट को भी मिलते थे. तो दिस इज जस्ट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो देयर विल बी गुड डेज, देयर विल बी बैड डेज, देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू नो व्हाट यू वांट टू डू, एंड देयर विल बी डेज व्हेन यू विल नॉट नो व्हाट टू डू, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. Totally true, totally. Absolutely fine. Thank you for this beautiful explanation, and thank you for
patiently answering whatever our girls have. Okay, let's make it a little interactive. So girls, I request you to raise your hand if you have a question, and I will ask you to unmute yourself, and you will introduce yourself saying, I am Devika, and Baji, Didi, I have this question, and you will say your question. Let's do that. I really don't want you to stay on mute and just type. Let's make it a little interactive. Sanika Didi ko bhi acha lagega. Okay. Definitely. Sure. Nazneen, you can come off mute and ask your question. Yes, Sanika Didi, I would like to say that how many years we have to work to become doctor? ओके सो फिलहाल तो अगर आपको पहले अगर डॉक्टरेट करना है या पीएचडी करना है एमबीबीएस करना है तो आई थिंक इट टेक्स अबाउट good 8-9 years to study first, and that I can see somebody going oh when I said 8-9 years, but yes it is extensive. बहुत ज़्यादा पढ़ाई होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स से आप इंट्रोड्यूस होते हैं जब आप उस लाइन में पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं. एंड देन इट्स अबाउट यू गेट सम वर्क एक्सपीरियंस, बिकॉज सिर्फ पढ़ाई करके तो हो नहीं सकता है. आपके सामने अगर पेशेंट बैठा है तो आप बुक्स में तो पढ़ नहीं सकते कि अरे बाप रे अभी मैं क्या करूँ. सो वो उस चीज़ को जिसकी आपने पढ़ाई करी है आपको उसको अप्लाई भी करने आना चाहिए. तो आई थिंक इट टेक्स अबाउट गुड 8-9 years मिनिमम टू बिकम अ डॉक्टर, starting from your undergraduation till you do your post graduation and everything. I think it takes about good 8-9 years. और आप उसके बाद भी पढ़ाई कर सकते हो, आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, आप कोई और कोर्स कर सकते हो. तो डेफिनेटली आपका अगर मन जाए तो आप 20-25 साल भी पढ़ाई कर सकते हो, बट till you become an MBBS doctor, I would say definitely it would take somewhere around 8 or 9 years. School के बाद, हाँ, this is not after 6th standard, this is after your 10th standard. Definitely. Thank you so much, Anika. Thank you, Nazdeen, for that wonderful question. Zainab Mansoori, would you like to ask? Zainab, are you there? Okay. Samaira, do you have a question? Yes, Bhaji. I have a question that did Anika Didi, you have done this job or that love study. So how you help others with this? Like, So, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझा, आप वापस बोल सकती है? yeah, you have done your study about sport and that. So how you help others with this? Okay. I think I understand and I'll try my best to answer. Okay, so आपको जानना है कि ये पढ़ाई करने के बाद मैं काम कैसे करती हूँ और मैं किसके साथ काम करती हूँ. Yes. Okay, wonderful. So because मैंने psychology की पढ़ाई करी है, I work with people, especially with athletes, because मैंने sports psychology करी है और मैं उनको उनके performance related help करती हूँ. For example, अगर आप athlete हो और आप मेरे पास आते हो और you tell me कि सानिका आई एम प्लेइंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एट द मोमेंट और मुझे अभी स्टेट के परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, राइट? तो हम आपके मेंटल ट्रेनिंग के ऊपर काम करेंगे. अब मेंटल ट्रेनिंग में क्या होता है, हम एथलीट्स को सिखाते हैं कि तुम तुम्हारे थॉट्स के ऊपर कैसे कंट्रोल ला सकते हो, तुम तुम्हारे इमोशंस के ऊपर कैसे कंट्रोल ला सकते हो, तुम खुद से जो बातें करते हो उससे फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है. सो यू ट्राई एंड ट्रेन द एथलीट्स माइंड सो दैट इट द माइंड देन स्टार्ट्स वर्किंग बेटर, सो दैट द एथलीट इज एबल टू प्ले एंड परफॉर्म बेटर. और किसी ने तो पूछा हु आर एथलीट्स. सो एथलीट इज एनीबडी हु प्लेज एनी स्पोर्ट. अगर आप कोई स्पोर्ट खेलते हो तो आप एक एथलीट हो. आप एथलेटिक्स कर सकते हो, आप बास्केटबॉल खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, कबड्डी खेल सकते हो, एनी स्पोर्ट यू प्ले एंड यू आर एन एथलीट. आई होप सुमायरा आपका क्वेश्चन मैंने आंसर किया है. Thank you. Thank you so much, Samaira. Thank you so much, Sanika Didi. That was a very enlightening question, but knowledgeable question. Great job, Samaira. Juveria, you have a question? Yes. Hi, Sanika Didi. I have a question like, what you love the most? Like,
डॉक्टर होना या स्पोर्ट्स? Okay, that is a And- very nice And question. how Yes. many years you spend in both of them? Okay. So I think मेरा liking change हुआ है. So जब मैं जितने आपके जितनी थी, तो मुझे खेल कूद करना बहुत ज़्यादा पसंद था. मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद है. बट तभी मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद था. और अगर मुझे कोई बोले कि चलो आज स्कूल नहीं जाना है, आज से प्रैक्टिस जाना है, मैं खुशी-खुशी स्कूल नहीं जाके मैं प्रैक्टिस जाती थी. सो आई थिंक दैट इज़ व्हेन मुझे तभी वो बहुत ज़्यादा पसंद आता था. बट अभी मुझे पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद आता है बिकॉज़ मुझे जो मेरा काम है वो बहुत ज़्यादा पसंद है. तो जब मैं एथलीट्स के सराउंडिंग में होती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाई आई लाइक द वर्क दैट आई डू नाउ. एंड आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? How many years you spend Years. in both? राइट. सो मैंने टेबल टेनिस इंडिया में खेला है 12 साल. एंड फिर मैंने खेलना बंद किया फिर क्योंकि मैं लंदन गई पढ़ाई करने के लिए. मैंने वहाँ भी जाके 2 साल खेला है. सो आई थिंक आई हैड अबाउट गुड 13-14 years ऑफ टेबल टेनिस का करियर. एंड आई थिंक इट्स बीन अबाउट 2.5 years of being a sports psychologist. Amazing. Beautiful question, Javeria. Very, very interactive. Okay, I have 4 more girls raising hands, and that will be it that I'll be taking. Uzaira, do you have a question? Yes, buddy. Hello, Sanika Didi. I am Uzaira. I want to ask that when you were a child, so what you want to become and what you are now? राइट. सो जब मैं बहुत छोटी थी, जैसे कि मैं बोलते आ रही हूँ कि मुझे तभी से कुछ तो अलग करना था और वो शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग सी बात थी कि मुझे कुछ अलग करना है. एंड और फिर वो अलग सोचते आज मैंने बहुत ही कुछ अलग सब्जेक्ट चूज़ किया है जिसका कोर्स अपने इंडिया में है ही नहीं. तो मेरे दिमाग में तब से ये था, मुझे तब पता नहीं था कि मुझे साइकोलॉजी की पढ़ाई करनी है या मुझे ह्यूमन बिहेवियर को जानना है. बट मेरे दिमाग में हमेशा से वो था कि मुझे जो लोग कर रहे हैं उससे डेफिनेटली कुछ और करना है. और इसीलिए जब मैं छोटी थी, जो मेरे सारे फ्रेंड्स थे वो सिर्फ स्कूल जाते थे और मुझे ऐसे था कि मुझे सिर्फ स्कूल नहीं जाना है, मुझे उसके साथ कुछ और करना है, मुझे कुछ क्रिएटिव करना है. Okay. Thank you, Uzaira, for that question. Aisha Sakir. Yes, so Baji, I want to ask that, like, Baji, in मतलब कौन से hospital में you do the job, and which like it's of stomach, eye, Aisha, you're not completely audible. I heard that you asked which hospital does she work in and मतलब काय का like from like what you do like of eyes stomach ऐसा कौन सा करते? ओके. सो आई टेल यू वन थिंग, मैं हॉस्पिटल में काम नहीं करती हूँ. मैं एक ऑफिस में बैठ के काम करती हूँ. मैं अपने घर से काम करती हूँ. थैंक यू कोरोना वायरस की वजह से हम सब घर पे बैठे हैं फिलहाल. मैं हॉस्पिटल में काम नहीं करती हूँ बिकॉज मैंने मेडिसिन की पढ़ाई नहीं करी है, मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई करी है और उसके लिए आपको हॉस्पिटल में काम करने की जरूरत नहीं है. Just to clarify once again, if you're still confused, ये क्या है इन डिटेल ना, वो हम एक और सेशन रखेंगे, मैं आपको समझा दूंगी. We did discuss this yesterday also before coming to the session. MBBS मेडिसिन के लिए है और PhD जो है वो सनिका दीदी है. So दीदी ने पढ़ाई की है पर उन्होंने डॉक्टर मतलब डॉक्टरी मेडिसिन वाली पढ़ाई नहीं की है, उन्होंने स्टडी किया है वो सब्जेक्ट पे. And now she's working. So whom does she work with? She works with the sports people, athletes की बात की, उनके साइकोलॉजी के साथ काम करते हैं वो, that how they are feeling while they are playing, and she treats them like this. तो जो एथलीट्स है उनके पास एक फिजियोथेरेपिस्ट यानी उनके फिजिकल हार्म के लिए भी जो होते हैं कि उनका मसल पुल हो गया या बोन टूट गया तो उसका इलाज करते हैं. वैसे ही जैसे स्पोर्ट्स पीपल
when they are not able to think properly, when they are very confused in life, when they are sad because of the loss, that's when Sanika Didi helps. I hope that helps. Just clarifying so that you don't leave with this session with confusion. Okay. We understand. Michelle. So, hello, Sanika Didi. So, my question is that when you start your doctor, when you start becoming a doctor, so were you nervous? And when you start becoming a doctor, so what problems came in your life, and how did you overcome Yes. that problem? ओके आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब ये डिसीजन भी लिया था मैं तभी भी ज़्यादा नर्वस थी और मुझे लगा था ये मेरे नर्वसनेस का लिमिट है, बट जब से मैंने वो एक्चुअली पढ़ाई करना स्टार्ट हुआ मैं हर दिन वो फील करती हूँ कि अरे बाप रे ये इतना डिफिकल्ट है, ये मेरे से होगा कि नहीं। तो अभी तक मुझे नहीं लगता है मैंने अपने मेंटल प्रॉब्लम ओवरकम किए हैं और मुझे नहीं लगता कि बाय द टाइम मेरा पीएचडी खत्म होगा मैं वो ओवरकम भी करूँगी, बिकॉज यू नो जो जैसे आपने बोला कि क्या आप नर्वस हो, आई विल थिंक अबाउट इट इन अ वे कि अगर मैं नर्वस हूँ तो व्हाट इज दैट इमोशन ट्राइंग टू टेल मी, व्हाट इज दैट इमोशन ट्राइंग टू टीच मी, राइट। जैसे कि अगर मैंने आपको पूछा मिशन कि अगर जब भी आप नर्वस होते हो तो आप क्या सोचते हो, कैन यू टेल मी? When we are nervous, हमारे दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, like राइट कुछ भी नहीं. राइट, तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमें सोचना क्या है, राइट। विच मीन्स दैट कि इतनी सारी चीजें हम एक टाइम पे सोच रहे हैं कि हमारे ब्रेन को पता नहीं कि कौन से थॉट पे फोकस करना है, एंड दैट टेल्स अस दैट हमारे पास या तो बहुत ज्यादा ऑप्शन है या फिर हमें जो डिसीजन लेना है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, इसीलिए हमें उस बात का सोचते सोचते हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो जब हम नर्वस होते हैं तो दैट इमोशन इज ट्राइंग टू टेल अस दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो संभल के डिसीजन लेना। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं ये नर्वसनेस को ओवरकम कैसे कर सकती हूँ, हमें पहले ये सोचना चाहिए कि वो अगर मेरे को इमोशन आ रहा है तो व्हाट इज दैट इमोशन ट्राइंग टू टेल मी, वो मेरे से क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। जैसे कि अगर हमें कभी कभी गुस्सा आता है, हम गुस्से में किसी को मार देंगे, किसी को कुछ बोल देंगे, वो करने से अलावा अगर हम सोचेंगे कि वो गुस्सा मुझे क्या बता रहा है, व्हाट इज दैट इमोशन ट्राइंग टू स्पीक टू मी, I think we'll be much more in a position to handle our emotions better. अगर मैं खुश हूँ तो what is that emotion trying to tell me that yes, thumbs up, you achieved something, that's really good, keep going on. अगर हम sad हैं तो हमें हमारा इमोशन क्या बता रहा है कि तुमने ये अचीव नहीं किया या तुम्हारे साथ ये सही नहीं हुआ। इट्स ऑल राइट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हम जो सोचते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है। हमारे इमोशंस हमारे साथ हमेशा बात करते रहते हैं। बेसिक में अगर आपको समझाओ तो हमारे ब्रेन में कोई तो केमिकल रिएक्शन होता है और हमें एक इमोशन महसूस होता है, हम अब वो जाके केमिकल रिएक्शन तो बदल नहीं सकते हैं, अंदर तो हमारे हाथ जाते नहीं है, तो हमें उस चीज को अंडरस्टैंड करके फिर उसके ऊपर सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी आदमी या औरत जिंदा है जिन्होंने ये मास्टर कर लिया है कि हम नर्वसनेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। डेफिनेटली हम ओवरकम कर सकते हैं प्रोवाइडेड हम उस चीज के बारे में थोड़ा सोचे कि अगर मैं नर्वस हूँ तो मैं क्यों नर्वस हूँ, कौन से सिचुएशन में नर्वस हूँ, मुझे किसी ने बोला इसीलिए मैं नर्वस हूँ या मैं खुद के एक्सपेक्टेशंस की वजह से मैं नर्वस हूँ। Totally beautifully explained. Thank you so much, Tanika Didi. Zainab Mansuri, we have the last question for the day. Zainab, are you here with us? Yes. So I'm Mansuri now. So my question is like Zainab, have you like Zainab, can you put your video off and try talking? Your voice is a little, it's not clearly audible. Try putting your video off. But your voice is not coming. Okay, thank you, Minsha, for informing. Yes, Zainab, you can speak. Yes. So my question is how Sanika Didi manage like means
okay, like in sports something happens, so how she like मतलब कैसे वो ध्यान में रख पाते कि in this problem we this thing happen, like something happened to someone in sports, so what they do, so how they and like what Okay, are you trying to say कि सनिका दीदी को कैसे पता चलता है कि कौन से प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन देना है? How to Yes. actually solve that? Yeah, thank you Zainab for that question. I think it's a very very good question, Zainab, and this question ये मैं कभी-कभी खुद से भी पूछती हूँ कि तुम्हें exactly कैसे पता चलता है कि तुम्हारे से कौन क्या बात कर रहा है और उसमें से understand क्या करना है, and that is exactly what I typically do is मैं जब भी कोई भी एथलीट के साथ बात करती हूँ तो मैं बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चंस उनको पूछती हूँ सो दैट वो उनकी स्टोरी मुझे बता पाए, राइट? एंड जब वो मुझे अपनी स्टोरी बता रहे हैं तो मैं दोनों कानों से दोनों आंखों से सुनती हूँ उस बात को, राइट? यूजुअली हम क्या करते हैं, जब हम सुनते हैं तो हम सिर्फ ये ओपन रखते हैं, हम हमारी आंखों से उनका चेहरा देखते नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने ऐसे बैठी हूँ और मैं बात कर रही हूँ, आपको क्या लगेगा कि क्या मेरा मूड बहुत अच्छा है? एनीबडी? अगर मैं ऐसे बहुत ऐसे मेरे शोल्डर्स नीचे है, मेरी गर्दन ऐसी और मेरे मुंह पे ऐसा अगर ज्यादा स्माइल भी नहीं, आपको क्या लगेगा कि क्या मेरा मूड बहुत अच्छा है? नहीं, राइट? आपको कैसे पता चला? बिकॉज मेरे बॉडी ने आपको सिग्नल्स दिए कि शायद सानिका का मूड अच्छा नहीं है। वही अगर मैं एकदम चियरी हूँ, मैं स्टिफ बैठी हूँ और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं आपसे आंखों में आंखें मिला के बात कर पा रही हूँ, तो आपको लगेगा कि सानिका दीदी आज बहुत कॉन्फिडेंट है और सानिका दीदी फुल प्रिपेयर करके आज आई है, राइट? Which means that when somebody is talking to you, आप सिर्फ कानों से उनकी आवाज नहीं सुन रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, आप उनकी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड दैट गिव्स आउट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब भी हम किसी से भी बात करते हैं और अब आप किसी को भी सुन रहे हो तो हम वो इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं, एंड देन साइकोलॉजी की पढ़ाई में वो इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है, वो इंफॉर्मेशन हमें बता क्या रहा है, उसके ऊपर थियरीज होती है, एंड उसके ऊपर वो थियरी को अंडरस्टैंड करके, वो एथलीट को अंडरस्टैंड करके, फिर हम उसके ऊपर अब हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं के बारे में हम बात करते हैं, राइट? सो ये आप अपने स्कूल में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी देविका दीदी अगर आपको कुछ पढ़ा रही है और अगर देविका दीदी स्माइल नहीं कर रही तो आपको लगेगा ना कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, शायद देविका दीदी आज बिल्कुल मूड में नहीं है, शायद उनकी मम्मी ने उनको आज डांट दिया होगा सुबह सुबह घर से निकलते और आज उनका मूड अच्छा नहीं है। बट वही अभी हम देविका दीदी को देख रहे हैं कि शी इज स्माइलिंग, शी इज नॉडिंग, शी इज लिसनिंग, शी इज आस्किंग गुड क्वेश्चंस। उसका मतलब क्या हुआ कि वो पूरी तरह से अटेंशन पे कर रही है। जैसे कि मुझे आपका जिन का कैमरा ऑन है, मैं देख सकती हूँ कि मैं कुछ बोलती हूँ तो आपकी आंखें चमक जाती है, या आप जब भी मैंने बोला कि 9-10 साल लगेंगे तो किसी ने कहा 9-10 साल लगेंगे, which means your body is giving out that information, राइट? जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो आप सब स्माइल करो, जिनका कैमरा बंद है उनके भी बारे में बोल सकती हूँ कि आप छोटा सा तो स्माइल कर रहे हो, which means that it's not just हम हमारे वर्ड्स से कम्युनिकेट करते हैं, हम हमारे पूरी बॉडी से कम्युनिकेट करते हैं, एंड दैट इज द ओनली सोर्स कि हम पहचान सकते हैं कि हमारे सामने वाला आदमी या एनी एथलीट क्या बताना चाहता है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ listening attentively and then coming back to कि तुम्हारे पढ़ाई में इसका क्या मतलब है। Amazing, beautifully explained. Thank you so much. Thank you Zainab for that beautiful question. Thank you Sanika Didi. Wow, I feel so enlightened. I myself have learned so much from you. I hope my girls are also taking away a lot of new learnings and a lot to think about, a lot to learn from. So in the interest of time, ending it on a high note, I have one last question for you. What keeps you motivated always? हाँ मुझे ये करना ही है the next day. What is that keeps you motivated? And where do you see yourself in the next 5 years? Just so that helps my girls to also think through on where do we see ourselves.
these are such important questions, and I feel like if I'm very very honest, I think what keeps me motivated is the fact that I really like what I do. मुझे मेरा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद है। जो मैं काम करती हूँ, जब मुझे कोई एथलीट आके बोलता है कि सानिका आपसे बात करके मेरे परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हुई या मैं जीत पाया या मैं अच्छा खेल पाया, वो फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड लाइक टुडे दिस मॉर्निंग, जब भी आप मुझे चैट में इतना एनकरेजमेंट दे रहे हो, आप मुझे इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हो, आई थिंक दिस ऑल्सो कीप्स मी गोइंग बिकॉज आई नो that there are so many people like you girls who want to know and who have that ability to dream, and I think that is something which really really keeps me going. I think just doing good work keeps me going, and I ensure, and I don't know, but I really want to create an impact with my subject, and I want to be able to help as many people as I can. Just not probably doing something big, but just having that conversation with them. I think that is something which really keeps me going. And I think in about 5 years time, I think I should be able to achieve where I have either worked with Indian Olympic athletes or Indian World Championship athletes. I think I really want to create an impact at the India level, ताकि जब मैं छोटी थी और जो मेरा सपना था कि मुझे अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, वो मैं ये रोल में पूरा कर पाऊँ. So I think yeah. All the very, very best for whatever you're dreaming further. I am sure you'll reach those heights and you totally deserve that. And one last thing, if you could leave with some enlightening thoughts for my girls, just to keep them motivated and really connected to this session. Right. I would just like to say that, just the fact that आपने इतने अच्छे questions पूछे हैं means that आप वो उस बारे में सोच सकते हो, उस बारे में आप ड्रीम कर सकते हो. एंड मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ड्रीम्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट. अगर आप में वो ड्रीम करने की अगर ताकत है, इफ यू हैव दैट capacity to dream, then you will definitely have the capacity to make sure that that dream turns into a reality. And अगर आपको कुछ भी नहीं हो पाया, तो just that ability to dream, just that innocent ability कि मुझे कुछ करना है, I think that is on some days even that is enough. So I would say please keep on dreaming. Do not stop because they do not discriminate. Just because हम girls हैं या हम कोई एरिया में रहते हैं या हम I don't know, like any barriers. No, there can be no barriers. अगर हम हमारा मन बना ले कि मुझे ये करना है, I'm pretty sure all of you will be able to achieve whatever it is that you set your eyes on, and just have the ability, have that courage to dream, because it takes a lot to even dream, and just to say that okay मुझे ये achieve करना है, वो बात बोलने में भी बहुत ज़्यादा courage लगता है. And I think you all should do that. And you have teachers, you have Bajis like Devika, who I'm sure will help you, hold your hand through everything that you face. And I wish you all the very, very best, love and warmth from my end. And I hope you all are doing safe amidst the whole chaos that we are all going through. Totally. Thank you so much, Sanika Didi.